जर्नी, लॉन्ग कह लीजिए, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल दोनों कह लीजिए, क्योंकि कुछ अटेम्प्ट में सर्विस मिली भी, कुछ अटेम्प्ट में नहीं भी मिली। सो ज़्यादा टाइम मैं लूँगी नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका टाइम बहुत कीमती होता है। I'll come directly to the point, and I have certain points, certain questions which I had when I started preparation, which most of you might have, and वो आता है हमारी graduation के बाद. So I'll keep it in a question answer format, क्योंकि जो दिमाग में सवाल आप लोगों के हैं वो मेरे भी थे, तो उनके जवाब अगर आपको मेरे इस जर्नी में कहीं मिल जाते हैं, so I will be very happy. So the 3 to 4 major questions which come in the preparation for UPSC or GPSC is, the first question is कॉलेज के बाद क्या हम डायरेक्ट तैयारी चालू कर दें या हम कोई जॉब ले लें और जॉब के साथ करें या जॉब छोड़ के करें। तो पहला सवाल जो सबके दिमाग में आएगा वो यही होगा when you will be clearing your graduation and become eligible for giving UPSC or GPSC. तो आता है ये कई लोगों के दिमाग में? I think it might be coming. Then the second question which comes, इनके आंसर मैं आपको दूंगी. First I'll give you a brief of my all questions and which I will be addressing. The second question which comes is study after marriage, and this is I think more apply more to girls, because शादी के बाद ना चेंज तो लाइफ लड़का और लड़की की दोनों की हो जाती है, but I feel लड़कियों की ज़्यादा चेंज हो जाती है. So whether you should study or can you study after your marriage? And the third point is how to study after having a child, or doing your training, or going for a work also, or leaving your 6-month child behind and coming for a conference also. So ये इसका सवाल आता है. And चौथा जो सवाल आता है कि how to keep yourself motivated and keep studying after some failures also, because UPSC और GPSC ऐसी जगह हैं जहाँ there are so many of my friends who cleared it in first attempt. I think they are brilliant and they are very intelligent. But there are many of us, and even I was one of them, who couldn't get my service in my first attempt, the service which I dreamt of. So 5 साल I have given UPSC exam 5 times. I have cleared mains 4 times, and I have given interview 3, and I have given interview 4 times, and I have got service 3 times. So इतनी बड़ी जर्नी में कुछ आप जब मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने 5 साल एग्जाम क्यों दिया? कब मेरा वो मोटिवेशन रहा नहीं रहा, क्यों मन मतलब एक बार तो लगा होगा ना कि अब हमें छोड़ देना चाहिए. तो इट विल कम विथ एवरीवन. दोज हु क्लियर इन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, दे आर वेल एंड गुड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कम आउट वेरी इजीली. बट कुछ हर लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता. तो आप कैसे अपनी जर्नी को पूरा कंटिन्यू करें? सो दीज आर माई 4 बेसिक पार्ट्स आई हैव डिवाइडेड. उसके बाद किसी को और भी कोई सवाल हो तो यू कैन पुट इट टू मी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट टेकिंग द जॉब. So I'll give my own personal experience, because I think इसका आंसर एक इंडिविजुअल का खुद का आंसर होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर फैमिली. सब पे डिपेंड करते हुए टेक योर ओन कॉल, बट हियर टू अदर्स. सो माई स्टोरी वॉज, आई टोल्ड यू, आई कंप्लीटेड माई कॉलेज इन 2012. आई केम फ्रॉम इट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस. सो अच्छा खासा पैकेज मिलके आई went there. Now the question was कि should I start preparation then and there or should I join it? So because मेरा mind about giving civil services, I had made it during my college days itself. जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने सोच लिया था कि one day I will be going for civil services. Why? उसका रीज़न भी थोड़ी देर बाद में मैं आपको बता दूंगी. So I was clear about it. Now what to do after 2012? Whether I should join Oracle or I should straight go to Delhi or anywhere and start my preparation. So वहाँ क्या होता है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम्स जो थी या फिर मैंने जो सोचा वो ये था कि आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड. बहुत ही यूपीएससी प्रिपरेशन और जीपीएससी प्रिपरेशन टेक्स अ टॉल ऑन योर पॉकेट. काफ़ी महंगा पड़ता है दिल्ली जाना या कहीं पे भी जाके प्रिपेयर करना. And in this matter, I would like to congratulate Vishwakarma Foundation if they are supporting any students in their preparation for UPSC and GPSC financially, because ये बहुत महंगा पड़ जाता है. First thing was that it was very expensive and I did not want that my parents should spend इतना पैसा. वो लाएंगे कहाँ से प्रिपरेशन के लिए? 1 साल में तैयारी के बाद नहीं क्लियर हुआ तो फिर दूसरे साल का कहाँ से, पता नहीं कब क्लियर होगा. तो मुझे लगा कि कुछ पैसा मुझे खुद ही कमा लेना चाहिए. दूसरा रीज़न ये था कि पता नहीं था सेलेक्ट होंगे भी नहीं होंगे. मतलब द क्वेश्चन वॉज द यूपीएससी एंड जीपीएससी, एवरीबडी नो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स से 10 लाख पीपल फिल फॉर्म ऑफ यूपीएससी. सो पता नहीं था कि कभी सेलेक्ट भी होंगे कि नहीं होंगे मतलब. और नहीं हुए तो मेरे पास फॉल बैक ऑप्शन क्या है? सो आई ऑलवेज वॉन्टेड अ फॉल बैक ऑप्शन. ऑल्दो कमिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, आई थॉट आई शुड हैव सम वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो.
ताकि मेरे पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा और मैंने 2-3 साल तैयारी करी, नहीं सेलेक्ट हुए, तो उस वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई विल ऑलवेज बी रेडी टू कम बैक इनटू माय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट में काम करने का मुझे एक मौका भी मिलेगा विच विल हेल्प मी इन माई गवर्नमेंट जॉब एज वेल. So these were the major reasons that why I thought that I will take this job. So this was my personal call, depending on the situation that you have in your family. आपके घर में क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति, आपका mental makeup क्या है, please take a call on the basis of that. Never jump into something, especially UPSC and GPSC preparation, which requires a very very clean, calm mind. जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से उसमें नहीं है और कहीं और भटक रहा है तो ये प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो आई थॉट इतना सब कुछ जंजाल नहीं रखना है, लेट्स फर्स्ट डू इट. तब तक what I started doing, which is very important and might help other students as well, कि मैंने during my job itself Monday to Friday जॉब होता था, Saturday Sunday used to be off. So I started joining offline sessions. वहाँ पे जो भी बैंगलोर के अंदर जो पढ़ाते थे कोचिंग्स वहाँ पे जब तक चलने लगी थी कुछ छोटी मोटी, मैं वहाँ जाना चालू कर दी. मुझे लगा था कि चाहिए कैसा भी पढ़ाएं बट एटलीस्ट मुझे बैठने की आदत हो जाएगी 10 घंटे. क्लासेस यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 8 or 9 इन द मॉर्निंग एंड दे यूज टू रन. बीच में सिर्फ खाने का आधे घंटे का ब्रेक और पानी का मिलता था. रात के 8 या 9 बजे हमें उस हॉल में बच जाती थी, पता भी नहीं लगता था. सो आई थॉट आई प्रिपेयर माई बॉडी एंड माई माइंड फॉर दैट काइंड ऑफ द स्टडीज. तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया. प्लस क्या होता है कि ज्ञान तो कहीं खराब जाता नहीं है ना. मेरे पापा ने मुझे हमेशा कहा था कि पढ़ते रहो, ज्ञान वेस्ट नहीं होगा मतलब. तो मुझे लगता था जितना वहाँ जाके सुना वही ठीक है और उससे मैंने अपना धीरे धीरे अपना बेस बनाना चालू कर दिया. आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स. आई स्टार्टेड नोइंग हाउ, बिकॉज आई थिंक श्रुति विल टेक द नेक्स्ट सेशन एंड विल शील टेल यू अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो एंड पैटर्न क्या होता है. यू विल कम टू नो दैट रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज अ स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ. अखबार जैसे अभी हम घर में मम्मी या पापा पढ़ते हैं उस तरीके से एक यूपीएससी या जीपीएससी प्रिपरेशन वाला बच्चा उठ करके अखबार कभी नहीं पढ़ सकता है. हिंदू इतना बड़ा आता है या इंडियन एक्सप्रेस इतना बड़ा आता है कि पहली बार जब मैंने वो पढ़ा था तो मैं उसको आधा ही 4 या 5 घंटे में ख़त्म कर पाई थी. तो उसके लिए एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजी, एक पैटर्न पता होना चाहिए कि अखबार को भी कैसे पढ़ना है, इसके करंट आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है, बुक्स कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं. पूरी तैयारी में जिस इंसान ने इसमें मास्टरी कर ली तो उसके लिए तैयारी बहुत, उसका सिलेक्शन होना बहुत ईजी हो जाता है. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस वर्क व्हेन आई वाज इन ऑरेकल. शाम को भी जब घर आती थी आई यूज टू इंश्योर कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँ. सैटरडे संडे को नोट्स कैसे बनाने हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. सो माई बेस आई स्टार्टेड फॉर्मिंग. सो इन 3.5 years अलॉन्ग विथ माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे ये आ गया था कि अच्छा अब हिंदू पढ़ना कैसे है, पेपर में पैटर्न में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट की किताब कहाँ से पढ़नी, सो दैट आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम व्हेन आई लीव माई जॉब वन डे एंड स्टार्ट माई फाइनल प्रिपरेशन. सो दिस वॉज हैपन. नाउ व्हाट हैपन इज 2015 में मेरी, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन वेदर यू शुड टेक द जॉब और नॉट. मेक योर कॉल एंड इफ यू टेक द जॉब देन प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दिस मैनर. किसी भी मैनर में जब भी आपको टाइम मिले, कीप इट इन माइंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर. तो अपना बेस बनाना चालू कर दीजिए. Now the question comes about the marriage. Now what happened in the case of marriage also? मुझे ये भी पता था कि अब फिर वही दिमाग में डाउट आता था भाई आज सेलेक्ट होंगे, 1 साल में होंगे, 2 में होंगे, 3 में, पता नहीं कितने में होंगे. और बीच में तो मेरे जिस समाज से हम आते हैं वहाँ तो 22-23 साल की उम्र में भी शादी ना होना तो बिल्कुल बवाल हो जाए. मतलब कि ऐसे कैसे हो गया कि शादी नहीं हुई अभी तक और इसकी तो होगी नहीं. मतलब although I married a person I loved in my college, we were both friends, but still शादी ना हो जाना तो बहुत ही बड़ी बात थी. और मुझे भी लगा कि तैयारी करते करते पता नहीं 1 साल 2 साल 4 साल कितने निकल जाएंगे और वो बीच में शादी ले आए तो मेरी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी. सो आई थॉट कि चलो उसको भी निपटा लेते हैं, मतलब कि लेट मी डू इट. एंड दिस डिसीजन ऑल्सो आई थिंक मैरिज में क्या है तो फैमिली वाला थोड़ा प्रेशर रहता ही है. सो मैंने इसलिए भी हाँ कर दी थी कि बिकॉज आई न्यू द पर्सन, आई न्यू हिम सो वेल दैट ये मेरी पढ़ाई में तो इंटरफेयर नहीं करेगा. In fact, I'll tell his part also. He not only interfered, we both started preparing together. We prepared together, and he also got into IPS in 2018. And मेरा थोड़ा delay हो गया, and I got this year. So we both prepared together. But I knew the person. So my point is, first, if the marriage point is there at home, तो कोशिश करो कि घर वालों को मनाओ और थोड़ा डिले करवाओ, 1 साल 2 साल, क्योंकि वो तो आपको डिले करवाना पड़ेगा. देखिए 2 तरह की तैयारी मैंने करी. मैंने बोला था मैं कॉलेज के स्कूल के बाद 12वीं पढ़ करके कोटा तैयारी करने गई थी, IIT तैयारी करी. दूसरी तैयारी मैंने यूपीएससी की करी. सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में जो मुझे दिखा वो ये था कि 12वीं के पढ़ने के बाद बच्चे पे शादी का प्रेशर उस टाइम नहीं आएगा.
बिकॉज यू जस्ट न्यू। तो आपके पास अच्छा खासा लीवे है, वो वाला एस्पेक्ट कभी दिमाग में नहीं था। बट यूपीएससी या जीपीएससी की तैयारी करते टाइम योर एज इटसेल्फ इज अ फैक्टर, एंड देन घर वाले भी चढ़ जाते हैं ऊपर, तो धीरे धीरे वो वाला आने लगता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ योर पेरेंट्स कि उनकी क्या कंडीशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन पोजिशन, एंड थोड़ा अपनी शादी को या तो आप डिले करवा दीजिए कि करेंगे 1 साल या 2 साल। और इफ़ यू टेक द डिसीजन ऑफ मैरिंग, तो हमने तो हमारा लाइफ का पूरा शेड्यूल यूपीएससी के शेड्यूल के हिसाब से चलता था। शादी भी करनी है तो इंश्योर करो कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने का बीच में गैप रहे, तब कर ली, ताकि फिर एग्ज़ाम दे लिया अपना। तो हमने डिसाइड किया कि शादी करके भी निपटाते हैं, मैं तैयारी उसके बाद चालू करूँगी फिर, अब अगर शादी करनी है तो। एंड यू शुड मेक इट वेरी क्लियर टू द पर्सन यू आर मैरिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि हो जाता है, बहुतों के साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी हुआ है, आपने भी सुना होगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स दे ड्रॉप आउट टोटली। जो नौकरी मिल गई, पहली बात है नहीं मिली तो बढ़िया है, क्या करना है, पति कमा के दे रहा है तो आपको जॉब करने की कहाँ ज़रूरत है। एंड आई वुड टेल यू, स्पेशली इन केस इफ योर हस्बैंड इज इन गुड सर्विस, आई थिंक द प्रेशर इज मोर, एंड आई थिंक मैम कैन अंडरस्टैंड इट। वो तो साफ साफ बोलेंगे, भाई तुम्हारा हस्बैंड आईपीएस है, तुम्हारा हस्बैंड आईआरएस है, तुम्हारा हस्बैंड आईएएस है, तुम्हें क्यों करना है। सी दिस काइंड, बिकॉज वी आर इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, सो लेट्स फेस इट। सो द आंसर हैज टू कम फ्रॉम योरसेल्फ। ये मेरे घर वालों ने, ऑल थैंक्स टू देम, बचपन से मेरे घर वाले ना मुझे ऐसे बोलते थे कि ये ना हमारी तो बेटी हमारे ना जवाई साहब को खिला लेगी, मतलब लड़का हमें कैसा मिले हमें नहीं मतलब, हमारी तो बेटी कर लेगी मतलब की। तो आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड इट। डोंट कीप टेलिंग योर डॉटर्स कि तुम्हारा पति, सी इट्स वेल एंड गुड टू हैव 2 आईपीएस इन द हाउस, 2 आईएएस इन द हाउस, 2 नौकरी अगर घर में आ रही है तो क्या दिक्कत है। The mentality has to change, and for any woman, girls who are sitting here, when we talk about women empowerment, I very very strongly say it. So financial independence is the first step towards your empowerment. No empowerment can come if you are not financially independent. चाहे वो 10,000 की नौकरी हो और चाहे वो 50,000 की नौकरी हो, चाहे वो 1 लाख की नौकरी हो, नौकरी नौकरी होती है। वो आपको जो एक कॉन्फिडेंस देती है, वो आपके हस्बैंड आईएएस क्या, मैं तो बोलूँ वो कोई भी क्यों ना हो, इस देश का सबसे हाईएस्ट इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन वो है, वो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंस आप अपने ऑफिस में जाके उस कुर्सी पे जिस दिन बैठोगे ना, वो उसी दिन आएगा। सो आई वाज वेरी क्लियर इन माय थॉट्स कि माय हस्बैंड कैन बी एनीथिंग, बट इट डजंट मैटर, इफ ही इज देयर तो वेल एंड गुड, घर में 2 हो जाएंगे, नहीं है तो आई विल हैव माय जॉब टू फीड हिम ऑल्सो। सो मैरिज वाला ये जो इशू था, तो मैं इसीलिए आपको बताई थी कि शादी वेल थॉट करके घर वालों को बोल के या तो डिले करवाइए, और अगर लग रहा है कि द एज इज राइट एंड द बॉय इज राइट, देन यू शुड गेट मैरिड। बट व्हेन यू गेट मैरिड, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मैरिज विच एवरीबडी फॉल्स, या फिर जो एक हम हवा क्रिएट करवा लेते हैं कई बार, वो हमने किया। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ये सोचा, मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलकर कि शादी को एक इवेंट लेते हैं, होली दिवाली ऐसे कुछ घर में आते हैं, तो इस तरीके से ही शादी आएगी, थोड़ा प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन के पार्ट में 0 पार्टिसिपेशन, आई हैड 0 पार्टिसिपेशन। घर वालों को बोला जो करना है वो करो, मतलब जो लाना है लेके आ जाओ, हम तो आ जाएंगे और उसको करेंगे। एंड द मोमेंट वी आर आउट ऑफ इट, विल जस्ट फॉरगेट कि हमने अभी शादी की है। वो 1 साल वेस्ट नहीं करना है मुझे बिल्कुल भी। एंड यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर माई मैरिज, आफ्टर 10 days ऑफ माई मैरिज, आई वॉज इन करोल बाग अटेंडिंग माई हिस्ट्री क्लासेस। मैं कहीं नहीं गई, मैं और मेरे हस्बैंड इतना डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी की उस फेस्टिव सीजन के अंदर इतना घुस जाए कि हमें यहाँ घूमने जाना है या वहाँ जाना है। वो होगा, हर किसी के साथ होता है, फैमिली में इतने फंक्शन है, नई बहू आई है, नए जवाई सा आए हैं, तो वो सब अटेंड करें और हम कहीं डीरेल हो जाएं। एंड डीरेल हो जाना इज वेरी इजी इन यूपीएससी एंड जीपीएससी, वेरी वेरी इजी, बिकॉज इट इज सच अ टफ माइंड टेकिंग थिंग कि आप कभी ना कभी सोचते हो कि छोड़ो यार, उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं लाइफ में, या फिर लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज योर प्रायोरिटी। Because in UPSC and GPSC, let me tell you, time will never come back. There is a certain age, there are certain number of attempts. If you waste that, तो वो कभी वापस नहीं आएगा.
सो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। घर वालों को बोला जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। और शादी के बाद क्या हो जाता है, मैं बहुत ही क्लियरली बताती हूँ कि मैनी टाइम्स ना वी स्टार्ट गेटिंग इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इसको साड़ी कैसी दी, उसको सूट कैसा दिया, वो कैसा लग रहा था, उसने मेरा सामान कहाँ रख दिया, वो सब क्या किया। मैं इतना ब्लाइंड हो गई थी कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आई टुक अ वेरी वेरी, ये आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, हर कोई स्टेप में फंसने लग जाता है। तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया था कि शादी हुई, जो सामान जैसा आया वो इन लॉ को जो करना है आप करो, मेरे घर वालों को जो करना है आप करो, दोनों आपस में करते रहो और हमें से बाहर निकाल दो। आई गेव अप एवरीथिंग देयर एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड कि जिसको जो करना है, जैसा करना है आप खुशी खुशी करो। मतलब आपके जो रिचुअल्स हैं इन लॉज फॉलो करो, जो मेरे घर वालों के आप अपना फॉलो करो। हमें जब कहीं बीच में आना है तो बुला लिया करो, हम अपने निकल जाते हैं। So do not get involved into those things because you should choose your battles very wisely, very very wisely. अगर आप उस टाइम पे see there are every, especially most of us come from very conservative families, ma'am, and especially for girls I would say when you go to, लड़कों के लिए क्या होता है, they are staying in the same house, तैयारी वो अपनी शादी के बाद वहीं से चालू कर देंगे, they have to adjust only to one new person, their wife. But what happens with the wife is that you just don't have to adjust to one person, you have to adjust to the whole family. You have to understand them, their culture, their ritual, their traditions are so different. तो गर्ल के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है एंड यू हैव टू फिट इनटू इट। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज आई हैव सीन मेनी गर्ल्स, they, and it is right also, they say that there are certain ritual or tradition which are different from my family, I will not follow, I will fight, I will do this, this is wrong. You can fight and you must fight, but you should choose when to fight. If I started fighting then, तो मेरी UPSC preparation तो डस्टबिन में चली जाती, because your mind gets occupied in doing those. So what I thought is there are certain things which are not right here or which should not happen in the society also. घर की बात नहीं है, समाज में ही गलत है। वो तो कई चीजें हमें समाज में ही गलत है, but this is not my right time, especially when I have no authority. One day if I clear, I come into UPSC, I become an IAS, I become IPS or IRS, I will have the authority, person will hear to me. So what I thought is सब battles खत्म, मैंने अपने कहानी बंद कर लिए थे, 10 दिन हुए खत्म सब काम, सब I left everything behind, just वही वापस आकर के वही पजामा टी शर्ट में आ गए और वही क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। So if you are clear in that much, तो I think शादी कोई अड़चन नहीं आएगा, you can have it, but the boy or the family should support you. The boy is the most important part. He must or she must support you in your education. That is the only criteria I had. वो फुलफिल हो गया, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी टू मी। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, स्टार्टेड प्रिपरेशन। और उससे ज़्यादा डर लगने लगा कि लोग ये ना कहने लग जाएं कहीं कल को कि भाई शादी वादी हो गई, अब तो ये शादी के उसमें खो गए, अब कौन पढ़ाई करेगा मतलब। सो आई वी बोथ वेरी कॉन्शियसली मेड आवर माइंड दैट कोई मजे नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे until we both get selected. And I will really tell you, I got selected into IPS and I was on maternity, so my child was born. First time we both went together for a trip, long trip is now after so many years, just 2 months behind, हम जम्मू कश्मीर फिर घूमने गए। तो चलो अब जो व्यू था, अब मेरी ट्रेनिंग आने वाली है, इतने समय से जो हो गया, हमारी बच्ची भी हो गई, तो बोले चलो, क्योंकि we made this कि जिस दिन दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन दोनों अपनी अपनी जॉब में जो हमें मिले, if we are satisfied with that one, the day we will leave our UPSC preparation, then we will go for a trip, and then we did our trip. So these small things you have to make very consciously. तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। Now comes the question of having a baby, studying with the baby, बच्चा हो जाने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है। इसमें I am very clear, I talk very frankly about it. There is nothing to hide because it is going to affect your whole life. Your whole life is going to, जितना शादी से इफेक्ट नहीं होता है, उतना बच्चा हो जाने के बाद इफेक्ट हो जाता है। Every lady know it, ठीक है। And what happened, your husband might be 100% supportive, but initial days of a child cannot be done without a mother. It cannot be. कुछ भी हो जाए वो माँ को वहाँ present होना ही पड़ेगा for at least some months. So this was a decision which I did not leave on anyone, and I was the only authority to take this decision. शादी थी, घर वालों ने बोल दिया, ससुराल वालों ने बोल दिया, ठीक है उनके हिसाब से कर ली मत कभी भी। But having a child, when having a child, whether I will continue my study, it was my lone decision. I'm telling you very frankly. I told my husband as well, because I knew कि सब बोलेंगे स्टार्टिंग में, हम पाल लेंगे, तू कर दे, हमको दे देना, हम रख लेंगे। मैं I did not fall into one of these traps because I knew what was awaiting me.
एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव प्रिपेयर फॉर सो लॉन्ग. मैंने अपनी तैयारी का, माई बेबी इज बॉर्न जस्ट नाउ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 5 years. आई हैव गिवन इंटरव्यू फॉर 4 times. सो आई न्यू कि मैं बहुत क्लोज हूँ. एंड नाउ इफ आई मिस ऑन समथिंग एल्स, it can be very happy moment, but I will not be able to enjoy. मेरा बेबी होगा तब भी मेरा माइंड तो पूरा वहीं ऑक्यूपाई होगा कि I was in a race, I was about to touch it and I couldn't get it. So this was complete my decision. So and suppose we don't know, अब बच्चा हो भी जाता है. I started reading about, because now see I have to go to NPA, National Police Academy in Hyderabad. I have to go after 2 months. My baby will be only 8 months old at that time. तो वो मदर का जो होता है ना, वो अंदर से जगने लगता है. तो मुझ में भी ऐसे होने लगा कि यार बच्चे को छोड़ के कैसे जाएंगे, इतना छोटा बच्चा है. वो सब कुछ दिमाग में आने लगता है कि क्या कर लिया, ऐसा तो नहीं हो गया कि एक कोई करना चाहिए था, एक को छोड़ना चाहिए था. Then at that time everyone in their life needs motivation. I also needed. I started reading about female officers, IPS officers, IAS officers. I got books and I started reading, and I realized that I'm not the only person doing it. There are so many women before me who have done it. उन्होंने अपने बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, वो लोग तो 2-2, 4-4 महीने के बच्चा पढ़ने चले गए. मैं तो सिर्फ एक ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, मैं तो सेटल हो चुकी हूँ अब. So I should go with very much enthusiasm, not crying कि मुझे कुछ छोड़ के जाना है मतलब. एंड इट इज़ अ डिसीजन. अभी हमारे समाज में कम है क्योंकि वर्किंग वुमेन कम है. द वे इंडिया इज डेवलपिंग, द वे वी आर डेवलपिंग, देयर विल बी मोर वर्किंग लेडीज, एंड आई थिंक इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ ट्रेंड. तो वो जो मदर गिल्ट आने लगता है ना कि बच्चे को छोड़ के कैसे जाने वाला है, वो जो समाज भी इम्पोज करने लगता है, वो धीरे धीरे हमें कहीं खत्म होने लग जाएगा. So what you should do is, in such timings you should always seek for a motivation which can be from outside or from inside. So for me, I have already started reading books of female officers, of other officers, of the service I was going to enter into, that what all it is offering me, and I am not the first one to do it. तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. सो रीड अबाउट द पीपल. हम कोई पहला तोप करने वाले, काम करने वाले नहीं हैं. हम जैसे तो बहुत आए और हम जैसे बहुत आएंगे मतलब. सो रीड अबाउट देम, हाउ दे डिड, राइट. तो ये हो गया वहाँ तक. नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट स्टडी आफ्टर फेलियर्स. नाउ व्हाट हैपेंड, मैं यही फर्स्ट आई गॉट इनटू रेलवेज. देन पहले ही अटेम्प्ट में जब मेरा रेलवेज हो गया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई कि चलो सेकंड अटेम्प्ट में तो इस बार जो है IAS मिल ही जाएगा, पूरा ही क्लियर हो जाएगा. बट इट केम टू सच अ शॉक टू मी कि 2017 में आई गॉट इनटू इंटरव्यू, बट फाइनली माय नेम वाज नॉट इवन इन द लिस्ट. मेरा लिस्ट में ही नाम नहीं था. मुझे लगा कोई ना कोई सर्विस अपग्रेडेशन तो मेरा हो जाएगा, बट सो आई थिंक वो मेरे पूरे प्रिपरेशन का सबसे लोवेस्ट टाइम था, सबसे लोवेस्ट मतलब कि मतलब नाउ कोई बाहर से भी देखेगा तो सोचेगा कैसे बेवकूफ़ हैं, पहले तो अच्छा खासा क्लियर कर रखा है, रेलवेज में है, तो अगर नहीं हुआ तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है. तो द पॉइंट इज बिकॉज समवेयर वी सेट आवर ओन स्टैंडर्ड्स. फिर ना एक पॉइंट के बाद समाज क्या स्टैंडर्ड आपके लिए सेट कर रही है वो मैटर नहीं करता है. आपके खुद के इंटरनल एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है. It was more for me because I left a very lucrative job in 2015 after working for 3.5 years. By that time, all my friends were settled in US. सब बाहर चले गए थे. Everybody was getting such a highly paid job, and they were so settled so well. So what I thought is, I left it for something. जब छोड़ा था तो सिविल सर्विसेज का इसीलिए मैंने छोड़ा था. तो मैंने बताया था कि द रीज़न यू शुड नो व्हाई आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई केम टू सिविल सर्विस इज़ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज के लोगों के बीच में रह के कुछ काम करने का. माई वर्क एट ऑरेकल वॉज ऑल्सो गुड, बट वो तो सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पे ही हमारा काम होता था. वी यूज्ड टू मेक सॉफ्टवेयर विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, बट मुझे डायरेक्टली कुछ इंटरफेस नहीं मिल रहा था. तो मुझे लगा कि आई डो नॉट फिट इन टू इट. सो दिस इज ऑल्सो पर्सनल कॉल. मुझे लगा कि मैं यहाँ फिट नहीं हो सकती हूँ. मुझे तो कोई ऐसी ही जॉब में जाना है जहाँ पब्लिक से इंटरफेस ज़्यादा हो. अब सिविल सर्विसेज से अच्छी नौकरी कौन सी हो सकती है जो आपको सब कुछ देती है. आपको पब्लिक इंटरफेस देती है, आपको समाज में एक नाम देती है, आपको बढ़िया तनख्वाह देती है सरकार, आपको जहाँ जाएंगे, आपको जो काम आप करना चाहते हैं या जो भी, उसमें थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशंस पे जाते जाएंगे इतनी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी काम करने के लिए जो किसी और सेक्टर में नहीं मिल सकती. तो सिविल सर्विसेज कम्स एज अ पैकेज टू यू, जिसमें आपको और ज़्यादा एक बार सीखने की मेहनत बहुत ज़्यादा है. वंस यू गेट इनटू इट एंड यू आर वेरी honest and efficient into your working, तो automatically it will open your doors to so many opportunities. So that was the reason that I left it, Oracle, और मैं इसमें आ गई थी. तो उसके बाद मेरा एक फिक्स एम था कि मुझे कम से कम I want to try and get into
IAS और IPS और रेवेन्यू सर्विसेज, बिकॉज आई थॉट दे हैव मोर एंड दे प्रोवाइड ऑल्सो, आपको ज़्यादा डोमेन में काम करने के लिए मिलता है। सो जब 2017 में नहीं हुआ मेरा, तो मैं मतलब इतना टूट गई थी कि आई डिड नॉट कम आउट ऑफ माई होम रूम आई थिंक फॉर 7 डेज, और इतना गम में थी कि मैं रोज़ घर में पोछे लगाती थी टू टेक इट आउट, कि झाड़ू पोछे ही करती थी, बर्तन धोती थी, मैं सिर्फ घर का ही काम करती थी मतलब। एंड माई हस्बैंड इज टेलिंग कि क्या हो गया है तेरे को, मतलब यू हैव क्लियर्ड इट वंस, यू विल क्लियर इट अगेन। बट वो अंदर की एक बात थी, वो पता नहीं क्या था मतलब की। तो आई फेल्ट आई हैव टोटली फेल्ड, मतलब मैं पूरा फेल हो चुकी हूँ। आई वाज सो मच इनटू इट दैट आई 2017 छोड़िए, 2018 का प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, मेंस तक क्लियर नहीं हुआ मुझसे, बिकॉज आई वाज इनटू दैट मच ऑफ शॉक ऑफ 2017। But I will guide you, and from my personal experiences, कि please come out of it as soon as possible. It is not worth. आपका अगला अटेम्प्ट ही वेस्ट हो जाता है। Everybody fails. उस टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं था, पढ़ने में ध्यान देते थे, but everybody fails at some or the another stage. आपका फेल और फेलियर, वो फेलियर तब हो जाता है जब आप उस पॉइंट पे छोड़ देते हैं। अगर आप वहाँ से पिकअप हो करके वापस चलना चालू कर देंगे, अगर अचीव कर लेंगे तो आप एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 2018 अटेम्प्ट दिया, मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने मिले सोचने के लिए मतलब, और फिर तैयारी का थोड़ा और समय मिला। देन आई गेव 2019 अटेम्प्ट, उसमें मुझे डिफेंस अकाउंट मिला, एंड अगेन आई गेव 2020 अटेम्प्ट इन विच आई गॉट इनटू IPS. So why I kept giving exam again and again for 5 years? It takes toll everybody, every aspect. पैसे बहुत खर्च होते हैं, mentally you are totally tired, समाज में रह रहे हो, all kind of things, your age, I crossed 30 by the time I cleared my exam. You have started crossing, family कब होगा, बच्चा कब होगा, घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, any kind of things can come from multiple paths. So giving exam for the 5 years, you need a very very strong motivation into your head. मोटिवेशन देखिए लाइफ में 2 तरीके से आते हैं, एक तो मोटिवेशन कोई आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करे, दूसरा मोटिवेशन आता है इंटरनली। आई थिंक जब आपको मुझे किक ऑफ करनी थी अपनी तैयारी, तो उस टाइम पे मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत हेल्प करता था। बाहर कई ऑफिसर्स ने काम किया है, अपने ही जिले के कलेक्टर हैं या जो भी हैं उनका काम देखते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये था एक्सटर्नल मोटिवेशन टू पुश मी टू गेट इनटू द टू लीड टू प्रिपेयर फॉर इट। बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, जब मैंने 1 बार या 2 बार अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद एक्सटर्नल तो बंद कम हो गया था। इट इज इंटरनल मोटिवेशन विच यू पुश यू टू थ्रू योर डार्क टाइम। वो एक अंदर में एक आग होनी चाहिए कि मतलब ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, मतलब मेरा तो ऐसे होने लग गया था कि ये कैसे हो सकता है कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट और आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट अदर्स आर एबल टू गेट। सो इंटरनल मोटिवेशन जो है, और वही रीजन था कि मैं 5 साल तक कंटिन्यूसली उसको देती रही। एंड एवरीबडी कुड सी इट। जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, वो आपके पेरेंट्स देख पाते हैं, आपका स्पाउस देख पाता है, आपका इन लॉज देख पाते हैं, क्योंकि वो भी आपको एक्सटर्नली कब तक मोटिवेट करेंगे। 5 साल तक तो कोई नहीं मोटिवेट कर पाएगा बाहर वाला। फिर आपको एक इंटरनल मोटिवेशन ही आता है कि हमने किसी चीज़ के लिए इसको छोड़ा है, और जो चीज़ स्टार्ट करी है ना, उसको फिनिश करनी है बस मुझको। आई विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। So that was the reason I kept on giving, and I think God and luck was gracious enough to pay me finally, and finally we got selected. So, and along my 5th year's preparation, when I went for my interview, I was 3 months pregnant at that time. But that did not stop, because आपको मैं बता रही हूँ, the day I came to know about this and my interview was there after 3 months, उस टाइम पे मैंने लाइफ में किसी को नहीं बताया, और मैंने अपने दिमाग को भी नहीं बताया कहीं ना कहीं, so that I can focus into something जो मैंने सोच लिया था कि इस बार I will give this last attempt, and if I don't clear then I'll take a break for 1 year and I'll prepare again. But at that time it was very very critical and crucial for me. So I did not let anybody, my mind also know कि कुछ हो रहा है, body में कोई change है, nothing. I kept constantly preparing for my interview wholeheartedly. I think after being pregnant I gave 150%. मुझे लगा अब तो एकदम हाई टाइम आ गया, मतलब इस बार तो करना ही है मतलब। So that kind of internal motivation should be there with you. अगर आप लोगों को मैं इतना ही बोलूँगी कि keep looking at toppers videos जो आते हैं, look at how difficult situations people have done it. They have done in more difficult situations in what we have done. ऐसे लोगों की ऐसी स्थितियाँ होती हैं। One of my friend who was giving interview, his father passed away 1 day before. I mean, उसका interview was next day. I just could not imagine कि how is he giving his interview. And the boy did not go, क्योंकि उसका इंटरव्यू था उसके अगले दिन। तो अगर लोग इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है हमारी तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो स्ट्रगल कुछ है ही नहीं। So look outward, look what people are doing,
गेट मोटिवेशन फ्रॉम देम, बट बिल्ड योर ओन इनर मोटिवेशन। आप जिस सर्विस के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपका किया हुआ काम, आप अगर चाहते हैं कि आप 1, 2 या 5 लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकें या कुछ कर सकें, तो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म। और अगर आप अपना माइंड उसके लिए उस तरीके से बना लेंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, आई टोल्ड यू इट्स अ पैकेज, इट गिव्स यू एवरीथिंग। आपको इतनी डाइवर्सिटी देता है काम करने के लिए, आपको अच्छी गवर्नमेंट पे करती है, आपका स्टेटस समाज में अच्छा है, आपको ऑल ओवर इंडिया घूमने को मिलता है थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स, और फिर आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को मिलता है, तो व्हाई नॉट टू जॉइन दिस सर्विस। तो वंस यू हैव मेड योर माइंड कि अब तो मुझे ये करना है, तो फिर आप पूरा अपना इंटरनल मोटिवेशन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। तो आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम वेरी सॉरी कि बहुत लोगों का टाइम बहुत कुछ खा चुकी हूँ मैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माई स्टोरी। अगर किसी को कुछ और सवाल पूछने हो तो आप प्लीज़ लास्ट में पूछ सकते हैं। एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई विश कि ऑल पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, एंड जो चिल्ड्रन है यू शुड सपोर्ट योरसेल्फ, जस्ट गेट दैट इनर मोटिवेशन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. એમને કીધું કે પતિ આઈપીએસ હોય તો પણ પત્નીએ મહેનત કરવી જોઈએ, ને પત્ની કદાચ ઊંચા પોસ્ટ ઉપર હોય તો પતિએ પણ મહેનત તો કરવી જ જોઈએ. કારણ કે વધારે લાગુ પડે છે. બેને ખૂબ સરસ વાત કરી. 3 પ્રયત્ન પછી 4. આપણે તો બધામાં 1, 2, 3 માં જ માનતા હોય કે 3 ટ્રાય પૂરી. આપણે ડીઓ પડી જાય ગામડામાં 1, 2, 3 પછી ટ્રાય ન કરે એમ. બેને ચોથી ટ્રાય, મતલબ કે પરીક્ષા હોય કે રિક્ષા હોય સાહેબ, ધ્યાનીએ ઊભો રહેશે ને તો બીજી વાર આવશે અને તમે સફળ થશો. જો થતા રહ્યા તો નહીં મળે. તમે બાજી મૂકી દીધી, પત્તા રમતા એમ કહે ને કે છેલ્લે ઓલો 100 કરે એટલે એમ કે આ તો બાજી મારી હતી, પણ વિઠ્ઠલ તીડીમાં કહે ને રમ્યો હોત તો. એટલે જો રમ્યા હોત તો તમારી બાજી છે. એટલે યુપીએસસી ને જીપીએસસી ની જો તૈયારી કરતા હોય તો લગ્ન ને એક કામ સમજજો, નિપટાવવાનું બેને કીધું એના ઉપર બહુ વિશેષ ધ્યાન ન આપીએ. ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણે બેનને એક સ્મૃતિ ચિહ્ન આપીને અભિવાદન કરીએ. તો વિનંતી કરીશ ભાવિનભાઈ, હરેશભાઈ, ડૉક્ટર પરેશ છનિયારા અને હું દિનેશ ગજ્જર કે જેમને મોમેન્ટો આપી અને સુમનબેનનું અભિવાદન કરશે.